नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल विधि जुशल अकेडमी में। एंड नाउ वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मर्डर. दिस whole topic has been divided into 12 parts, and now we have completed so far 10 parts. Now we are going to start the part number 11. The 4 clauses of section 300 and 5 exceptions. These all are divided into 12 parts, and you need to study each and every part in sequence. You cannot skip the classes. ये ध्यान रखिएगा, आपको इन सभी पार्ट्स को नंबर 1 से लेकर के नंबर 12 तक देखना है. नोट्स जरूर लेने हैं इसके, और एक एक बात को नोट करना है, हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करना है, रिवाइज करना है. ज़िंदगी के 2 घंटे हमेशा रिवीजन के लिए फिक्स कर दीजिएगा. बस यही इन्हीं बातों के साथ में प्लीज़ स्टार्ट दी नेक्स्ट क्लास, दैट इज द पार्ट 11 ऑन द टॉपिक ऑफ मर्डर. और अगेन BNS और IPC में कोई अंतर नहीं है, ध्यान रखना इस टॉपिक पर, मर्डर पर. एवरीथिंग इज सेम. स्टार्ट द क्लास. So let's start with the exception number 4. Culpable homicide is not murder. This is exception number 4 to section 300. What it says? Culpable homicide is not murder. आपराधिक मानववध हत्या नहीं होगी. Culpable homicide is not murder if it is committed without premeditation. First, in a sudden fight, in the heat of passion, upon a sudden quarrel. And next, and without the offender having taken undue advantage or acting in a cruel or unusual manner. So this is the Barak language. Now you see this like this. When the exception number 4 is applicable, when the culpable homicide is committed. कैसे? Every phrase is important. I am telling you again and again. Highlight कर लीजिए ऐसे ही, and you please highlight it and remember, like, all points are very important. This culpable homicide is committed in a sudden fight, in the heat of passion, upon a sudden quarrel. So these are plus things. Culpable homicide is committed means death is committed. है कि नहीं? Death is caused with the intention of causing death or blah blah blah. The case is covered in culpable homicide, and it is committed how? It is committed in a sudden fight, in the heat of passion, upon a sudden quarrel. 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 दिया 6. ऐसे याद कर लेना सारे पॉइंट्स को. एक भी पॉइंट, सारे पॉइंट जैसे लगेंगे आपको. It appears to be same. In a sudden fight, in a heat of passion, in the heat, upon a sudden quarrel. So these 3 points on one side, and how it should be without premeditation. Second, these are the other conditions. And second, without offender having taken undue advantage or acted in a cruel or unusual manner. So these all phrases are very important to learn. अब मैं समझाता हूँ कैसे. You imagine a case. Mr. Ramesh is riding his truck. ठीक, ट्रक चला रहे हैं, गाना गाते हुए जा रहे हैं, है ना, गदर का. एंड देन हिज ट्रक इज स्ट्रक अगेंस्ट द कार. और फिर ये तूने मेरी कार को कैसे टच किया, और ये सब रोड रेज इनका शुरू हो गया. तो दिस इज द केस ऑफ स्टार्टेड विद सडन क्वेरल. सडन क्वेरल का मीन्स इट इज वर्बल. क्वेरल मीन्स हीटेड आर्ग्यूमेंट्स. व्हाट डू यू मीन क्वेरल? Quarrel means heated arguments. So your case started with what? Verbal arguments, heated arguments. Got it or not? So this was the case of sudden quarrel. So they started quarreling means without violence any. अब यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है, मैं तो ये देख लूंगा, तूने ऐसे कर दिया, तूने वैसे कर दिया, सब verbal चल रहा है अभी. This is the case of sudden quarrel. Now in that heat of passion, they started what? There is a sudden fight. Sudden fight means द्वंद्व होना, combat होना. Now it is the use of exchange of blows. Now fight means exchange of blows. Try to understand this. In this case, Ghappu Yadav case का नाम, it was held in Ghappu Yadav University of MP. That fight is a combat between 2 or more persons, whether with or without weapons. Fight is what? Combat. कम्बैट मीन्स द्वंद्व आपस में होना, मल्ल युद्ध होना एक तरीके से मान लीजिए. एक्सचेंज ऑफ ब्लोज
between two or more persons whether with or without weapons. So this fight, when we can say this is a fight, there are two words here. See, because you should not get confused. आपको it seems to be same in sudden fight upon a sudden quarrel. So it seems to be same. कि what is this quarrel fight? It is not same. Quarrel means verbal arguments, heated arguments. Okay, upon a sudden heated arguments यानी कि verbal quarrel. Then in the heat of passion, आवेश में आकर के in a sudden fight. तो दिस इज द सर्कमस्टेंस. आप लगा सकते हैं कि ट्रक से आए उतर रहे हैं रमेश जी, सामने से निकल रहे हैं भाई साहब विष्णु भाई साहब कार में से, और इनकी पहले क्या होगा, सडन क्वेरल, है ना. तू ध्यान से नहीं चला सकता, व्हाई कांट यू ड्राइव सेफली, दिस दैट, तू मुझे सिखाएगा, दिस दैट, ले धपाधप. फिर क्या शुरू हो गया, सडन फाइट शुरू हो गई. तो अपॉन ए सडन क्वेरल इन द सडन फाइट इन द हीट ऑफ पैशन इफ द कल्पेबल होमिसाइड इज कमिटेड, then it will be the case of exception number 4. लेकिन शर्त क्या है, it should be without premeditation, बिना किसी पूर्व चिंतन के होना चाहिए. दूसरा, without the offender having taken undue advantage acted in a cruel or unusual manner. इसको भी समझ लीजिए. पहले इसको वन बाय वन समझते हैं. So first of all you have understood this गप्पू यादव. फाइट का मतलब समझ में आ गया आपको, व्हाट इज फाइट. फाइट इज ए कम्बैट. नाउ सेकंड पॉइंट इज व्हाट, सडन कब होगी ये. ए फाइट इज सेड टू बी सडन एंड इन ए हीट ऑफ पैशन व्हेन देयर इज नो टाइम फॉर द पैशन टू कूल डाउन. सी द केस इन गप्पू यादव. व्हाट दे हैव एक्सप्लेन्ड द मीनिंग ऑफ फाइट. फाइट इज ए कम्बैट बिटवीन टू और मोर पर्सन. ये हम लोग बात समझ चुके. नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट. ए फाइट इज सेड टू बी सडन व्हेन यू कैन से दिस इज सडन फाइट. Because requirement of exception number 4 is what? Fight should be sudden. When can you say this fight is sudden? Then a fight is said to be sudden and in a heat of passion when there is no time for the passion to cool down. You can say this. देखिए ऐसे. Fight is said to be sudden and in a heat of passion. अचानक फाइट हुई है ना, और वो भी कैसे, हीट ऑफ पैशन में हुई. आपने कहा यानी आवेश में आकर किया. कब, when there is no time for the passion to cool down. आप समझ रहे हैं कि बस आउट ऑफ कंट्रोल होता चला गया. इमेजिन कीजिए रमेश जी ट्रक चला रहे हैं अपना, चल रहे हैं गाना गाते हुए चल रहे हैं, गदर का गाना चल रहा है पूरा, गड्डी लेकर दिस दैट, और जाके ठोक दी किसी गाड़ी में जाकर के, है ना, समझे. सामने बैठ, मान लीजिए सामने गाड़ी चला रहा है अपना अनुराग, है ना, इसकी अपनी हुंडा सिटी है और ये अपने सपनों में चल रहा है, अपने ये भी अपने कहीं हवा में चल रहा है अपना वट गाना गाते हुए. अब हो गई, अब इनके भी सपना टूटा, उसका भी सपना टूटा, क्योंकि गाड़ी बढ़ गई आपस में. नाउ इन्होंने शुरू करी कहां से, दे स्टार्ट विद क्वेरल, यानी कि एक्सचेंज ऑफ हीटेड आर्ग्यूमेंट्स. देन दैट चेंज इनटू सडन फाइट. नाउ हीट ऑफ पैशन. नाउ दो इमेजिन हो सकते हैं. एक तो यह हुआ कि भाई ये लड़ते लड़ाते थक थका के बैठ गए, फिर दोबारा शुरू हो गए, है ना. तो नाउ देयर इज टाइम फॉर पैशन टू कूल डाउन. समझ रहे हैं बात ये. तो पैशन टू कूल डाउन, अगर टाइम आ गया, कूल डाउन का टाइम मिल गया, देन सडन ये नहीं कह सकते आप कि इट इज द हीट ऑफ पैशन. पैशन जो गुस्सा आया था अचानक लड़ाई में, अगर वो एक बार सबसाइड हो गया, देन दिस एक्सेप्शन नंबर 4 विल नॉट कम इनटू प्ले. समझ रहे हैं बात ये. तो टाइम गैप इज वेरी इंपॉर्टेंट. समझे. दिस इज फाइट. आप समझ सकते हो वर्बल क्वेरल, कम्बैट समझ चुके हैं आप लोग. फाइट मीन्स, सी फाइट हेयर मीन्स समथिंग मोर देन ए वर्बल क्वेरल. ऐसा नहीं होना चाहिए मैं तो देख लूंगा, तू हाथ लगा मुझे, ऐसा तू जानता नहीं है मुझे, ये सारा क्या वर्बल क्वेरल है ये. दिस इज नॉट फाइट. फाइट इज व्हाट, एक्सचेंज ऑफ ब्लोज. जब गुस्सम खांसी होने शुरू हो जाए वो, तब, है ना. सी दिस. तो इसको ऐसे समझ सकते हैं आप. फाइट मीन्स व्हाट, कम्बैट बिटवीन टू और मोर पर्संस. ठीक है, वेदर विद और विदाउट वेपन, दिस इज फाइट. You will have to define what you mean by fight. Whenever you will write question, when you will write the answer in mains on this, then you will have to explain the meaning of what you mean by fight. What do you mean by the quarrel? Otherwise, they seem to be synonyms in general. Something more than verbal quarrel.
नाउ सी दिस. सो क्वेश्चन यहां पर जो फाइट का आपको एक्सेप्शन नंबर 4 मिल रहा है, फाइट क्या कैसी होगी? इट इज कम्बैट बिटवीन 2 or more persons with or without weapon, but it must be sudden, nor pre-arranged, nor premeditated. Because gist of the exception number 4 is what? Fight. है कि नहीं है? Fight is the gist. कैसी फाइट होनी चाहिए? इसका मीनिंग क्या हुआ? This is not verbal quarrel. This is something more than verbal quarrel, and it should be must be sudden, not pre-arranged or premeditated. अब काम की बात जो है इसमें आपको जो देखनी है, this is and without the offender having taken undue advantage or acted in a cruel or unusual manner. It is also necessary. This is ये रिक्वायरमेंट तो है ही है. It must be the case of sudden fight in the heat of passion, sudden quarrel, but these are equally good conditions. What is what? Without having taken undue advantage, number 1, or acted in a cruel or unusual manner. इसको समझिए क्या मतलब है इस बात का. इसका मतलब क्या है कि कब अप्लाई होगा कि इन द सडन क्वारल कैसे होगा? ऑफेंडर डिड नॉट टुक अनड्यू एडवांटेज. सपोज कीजिए इन आर एग्जाम्पल है ना, कहाँ मिस्टर रमेश है ना, और कहाँ बेचारा पतला दुबला सा अनुराग. नाउ ही इज टेकिंग अनड्यू एडवांटेज ऑफ हिज बॉडीली पावर एंड killing him in cruel manner, then he will not be getting any benefit of exception 4. Are you understand? If it appears from the facts of the case that the offender who is seeking benefit under this exception number 4 to 300, he has taken undue advantage. देखिए, it was the case of sudden fight, इट वाज द केस ऑफ सडन आउट ऑफ पैशन हुआ, तो मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस तो हैं कि वाई, क्योंकि मैन सरिया कहीं ना कहीं लूज हो गया, अचानक लड़ाई हो गई, बिना पूर्व चिंतन के जा रहे थे, रास्ते में टकरा गए, हो गया. जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए पारुल मैडम है ना, पारुल मैडम अपने घर जा रही है, उन्होंने रिक्शा कर लिया, तो रिक्शा वाले से जब शुरू में उन्होंने क्या वो नहीं किया कि कितने पैसे लेगा, 10, 20, 50 जितने लेगा, बार्गेनिंग कुछ शुरू में करी नहीं. वहाँ पहुँच के रिक्शा वाले ने कहा कि मैं 50 रुपये लूँगा. अब ये आग बबूला हो गई, 50 मांगे कैसे तूने? ये 2 चमाट करके कुछ बोला, उसने कुछ बोला, 2 चमाटे उन्होंने रख दिए उसके बेचारे के, है ना. हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हुए, कम्बैट हो गया, यहाँ पर शुरू हो गया. अब यहाँ पर क्या है कि ये हुआ सडन पैशन में सब कुछ. इनकी कोई प्री मेडिटेशन नहीं है, अपने घर जाना था, पढ़ते पढ़ाते आ रही थी बेचारी, सोच रही थी सर ने इतना काम दे दिया, होमवर्क करना है, वो थिंकिंग चल रही थी. कोई ऐसा प्री मेडिटेशन नहीं था कि आज उतरते ही 2 चमाट मारने इसके पहले. दिस इज नॉट प्री मेडिटेशन केस. तो यहां पर क्या मेन सरी आपका लूज हो गया. जो इंटेंशनल किलिंग वाला फैक्टर है या नोइंगली किलिंग वाला फैक्टर है, वो मेन सरी क्योंकि लूज हुआ, दैट इज वाई योर ऑफेंस इज ब्रॉट डाउन फ्रॉम मर्डर टू कपिल होमिसाइड. बट इट इज ऑल्सो नेसेसरी, यू डिड नॉट टुक अनड्यू एडवांटेज ऑफ योर बॉडीली पावर. आपने कमजोर लिंथिन व्यक्ति को, फीबल व्यक्ति को आपने अगर अपनी उसकी शक्ति दिखाई, पावर दिखाई, एक तरफ खली खड़ा हो जाए और एक तरफ आम इंसान खड़ा हो जाए और वो उसको मारे, तो ही इज टेकिंग अनड्यू एडवांटेज. एक्टेड इन ए क्रूअल मैनर, कि उठाया पत्थर और उससे नीचे गिरा कर देकर सिर पे मारे जाए, ठक ठक छत 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 छत, उसको सिर पे इतने जबरदस्त मारे. एक्टेड इन ए क्रूअल मैनर. तो इट विल डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स ऑफ द केस, हाउ डिड द ऑफेंडर एक्टेड, हाउ डिड द ऑफेंडर एक्ट, कैसे उसने बिहेव किया, किस तरीके से मारा. इफ हिज बिहेवियर इज क्रूअल, इफ हिज बिहेवियर इज अनयूजुअल, है ना, और इफ ही हैड टेकन अनड्यू एडवांटेज, देन ही विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ एक्सेप्शन 4. प्लीज रेज हैंड अगर बात समझ में आ गई तो. सो दिस इज अगेन, बस आई एम कंक्लूडिंग दिस. फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्सेप्शन, फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड. व्हाट? Number 1, death must be caused in a sudden fight. You know the meaning of sudden fight now. This is combat. Secondly, sudden fight must be without any premeditation. बिना किसी पूर्व विचार के, पूर्व चिंतन के, without any pre-thinking, without any pre-planning, and it must occur in the heat of passion upon a sudden quarrel. Sudden quarrel, heat of passion, sudden fight. सही है?
And last, the offender must not have taken undue advantage or must not have acted in a cruel or unusual manner. Now come to the explanation of this. This is explanation. So please see the explanation. It is immaterial in such cases which party offers the provocation or commits the first assault. So this cannot be the point of dispute कि पहले इसने मारा था. Offender cannot say कि I reacted only, he was the first party. No. Anyone can be the first party in this case. In the exception number 4th. Got it or not? It is immaterial what this is. Which party offers the provocation? It may be the victim himself who offered the provocation, or which party commits the first assault. किसने पहली बार हमला किया मारा, इससे फर्क नहीं पड़ता. किसने प्रोवोक किया, इससे फर्क नहीं पड़ता. एक्सेप्शन में it is immaterial for the purpose of application of exception number 4. What is required? Whether there was a sudden quarrel or not, whether there was a sudden fight or not, whether it was in the heat of passion or not, and whether there was a premeditation or not, whether he has taken the undue advantage or acted in cruel or unusual manner or not. The answers of these 5-6 questions will determine the applicability of exception number 4. Note that who gave provocation, who committed first assault, these questions are immaterial. इससे फर्क नहीं पड़ता कि पहले किसने मारा, इसने मुझे गाली दी थी, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने मार दिया. इट इज इमेटेरियल. समझे? दिस इज ओनली हिट ऑफ पैशन. और जहां तक मुझे याद है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बड़े नेता हैं, उनका नाम मैं लूंगा नहीं, उन्होंने ऐसे ही किया, वो उन पर मर्डर केस इसी पे चला था. नाम ले लेता हूँ, आपने पढ़ी नवजोत सिंह सिद्धू. नवजोत सिंह सिद्धू पे चार्ज मर्डर कपिल होमिसाइड का यही लगा था. हीट ऑफ पैशन पे थप्पड़ मारा, मर गया इंसान, और उन पर चार्ज लग गया तुरंत इसी बात का. तो इसी पर फाइट, इसी पर वो मुकदमा चला था. तो ध्यान रखना है, रोड रेज के केसेस जितने होंगे लगभग आप समझते हैं, रोड रेज में किसी को मार दिया, वो लगभग यहीं पे कवर होंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रीवियस एनिमिटी है नहीं, कोई इंटेंशन नॉलेज वाला फैक्टर है नहीं, केवल सडन फाइट का मामला है. लेकिन जो प्रिकॉशन आपने देखनी है, वो मैक्सिमम प्रिकॉशन ये है कि ही शुड, ऑफेंडर शुड नॉट हैव टेकन अनड्यू एडवांटेज और एक्टेड इन क्रूअल और अनयूजुअल मैनर. और इन्हीं पॉइंट्स पर आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे. तो व्हेनेवर ए क्वेश्चन इज आस्क्ड इन योर ऑब्जेक्टिव और इन सब्जेक्टिव एग्जाम मीन्स में, then please see whether there is any unusual manner or cruel manner. वो लिखा होगा उसमें कि manner of killing क्या है उसमें वो. If it is not written, it means it is not unusual. कर लेंगे आप. तो this is now exception number 4. Again I remind, if your case is covered in exception number 4, तो it will be the case of culpable homicide not amounting to murder. If your case is not covered, it will amount to murder. सही है? कर लेंगे अब. ठीक है, तो इनकी क्वेरी ले लेते हैं पहले कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्शन नंबर 1. तो वहाँ पर, यहाँ पर क्या है, इन द हीट ऑफ पैशन है, एंड इन दैट केस इन द एक्सेप्शन नंबर 1 देयर इज सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन. तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर इन एक्सेप्शन नंबर 4 both parties, victim as well as the offender, they are exchanging blows, they are fighting each other. In case of provocation, that may be any reason for that. The victim may not be fighting, there may not be any quarrel, there may not be any verbal quarrel. Husband comes and he sees his wife in objectionable condition with some other person. He is suddenly gravely provoked. So here is no fight in this case, but he will get the benefit of exception number 1 if other conditions are satisfied. Good or not? In this case, this is a case of sudden fight. So in this case, there may be chances कि there was a quarrel. Again, quarrel means what? Exchange of heated arguments, है ना? That gave you that passion and that led to that combat, that is fight. So here you can say there may be some similarity regarding one is provoked, but again there are differentiating points. It is the case of fight and there is only one way traffic, the only offender is acting now. समझे नहीं समझे आप ये? तो this is the answer of your query. Got it? Now you are saying undue advantage, या
what is this? Unusual manner. Suppose I tell you unusual manner. Now suppose कीजिए the accused offender is killing someone. एक तरीका ये है, in the heat of passion he takes out his pistol and suddenly shoots, है ना? He takes out knife and stabs. This is. But now what he does? He takes the stone, he controls you, and then he keeps on assaulting on head, टक टक टक, जब तक मारता है, जब तक कि सिर्फ पिच नहीं जाता, है ना? जब तक कि आपके मुंह के चेहरे पे ऐसे निशाने दे, जब तक ये एक्सप्रेशन ना आ जाए. ये एक्सप्रेशन शूटिंग में नहीं आएंगे, लग गई गोली, खा लिया जहर, हंसते हंसते झेल लोगे आप. लेकिन जैसे ही वो दिखाएगा कि वो आपने कि इतने ज़्यादा अनयूजुअल मर्डर टू, कि सर पे हॉकी की स्टिक मारे जा रहा है, मारे तड़पा तड़पा के मार रहा है, तूने मुझे ऐसा कहा कैसे, है ना? तो दीज आर द केसेस ऑफ अनयूजुअल मैनर, एक्टिंग क्रूअली विद क्रुएलिटी. चाकू मार दिया, मान लीजिए निकिता के पेट में एक बार चाकू मार दिया, ठीक है. अब यश क्या कर रहा है? उसे जब तक घुमाया जा रहा है चाकू को बार बार, टक 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 टक, जब तक कि सारी अंतड़ियां, छोटी आंत बाहर आई, फिर बड़ी आंत आई, सब बाहर आ रही है. तो दिस इज व्हाट? क्रूअल मैनर. आप समझ रहे हैं? ये है क्रूअलिटी. अगर ऐसी क्रूअलिटी दिख रही है तो देन ही विल नॉट गेट द. या दूसरी बात है, मान लीजिए कि जो रमेश जी के ट्रक से किसी अनुराग की साइकिल टकरा गई, है ना? या मानिए खली का ट्रक है, वो थोड़ा समझ जाएंगे आप लोग, क्योंकि बहुत से लोग ऑनलाइन वाले रमेश जी को नहीं जानते, तो खली को जानते हैं सब लोग. खली के ट्रक से एक बच्चे की साइकिल टकरा रही. अब वो इतना कि तुमने ट्रक को टकराया कैसे, दिस है दैट है, उस बच्चे को पकड़ करके उसको, वो कहाँ उसकी पावर, उसकी छाती पे बैठ जाए और दे घूसे, इट मीन्स ही इज टेकिंग अनड्यू एडवांटेज ऑफ हिज बॉडीली पावर नाउ. तो इट इज ऑल द क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट्स. तथ्य के प्रश्न है, डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट. डिफरेंशिएट कर सकते हैं फैक्ट और फैक्ट्स में कि व्हाट इज द फैक्चुअल पोजीशन, वेदर ही हैज टेकन अनड्यू एडवांटेज, वेदर ही एक्टेड क्रूअल मैनर, और वेदर ही एक्टेड इन सम अनयूजुअल मैनर. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट ऑफ द केस. तो सारे एग्जाम्पल मिल गए आप लोगों को, सारी क्वेरी कवर हो गई, नहीं हो गई? अभी है किसी की? क्रूअल और अनयूजुअल मैनर में क्रुएल्टी इज समथिंग व्हेन यू गेट ए फीलिंग ऑफ कि घृणा हो, जिससे आप लोगों को लगे कि हाँ एक क्रुएल्टी के उसमें, जहां पर आपको दुख हो बहुत ज्यादा. अनयूजुअल का मतलब है कि जो तरीका आपने देखा भी ना हो इस तरीके से. अभी यू कैन नॉट इवन एज्यूम कि कोई मारता भी है तो यू कैन एज्यूम कि भी कोई गला घोट देगा, कोई चाकू मार देगा, समथिंग यू कैन से भी इस तरीके से मारा गया, इट्स इज अनयूजुअल. तो दीज वर्ड्स आर इनकॉर्पोरेटेड. ये नहीं पूछा जाएगा कि आपसे कि भाई इस वर्ड में अनयूजुअल में जाएगा कन्विक्शन या उसमें जाएगा. इट मे बी ओवरलैपिंग एज वेल. समटाइम क्रूअल एंड अनयूजुअल मैनर में भी ओवरलैपिंग एज वेल. तो यू नीड नॉट टू बी दैट मच प्रिसाइज कि इफ क्रूअल हो या अनयूजुअल, कोई से भी तरीके से कहीं भी फिट हो जाए बस वो. तो दिस विल द केस ऑफ एक्सेप्शन नंबर 4 हो गया. और कुछ हो गया सर? बढ़े आगे. तो मोटा मोटी ऐसे समझ लीजिए आप, किसी बलिष्ठ व्यक्ति के द्वारा, पावरफुल मैन अगर कंट्रोल से किड और एक कंट्रोल ए फीबल मैन, और उसको बुरी तरीके से ओवर पावर करके उसको पीटना, मीन्स ही इज टेकिंग अनड्यू एडवांटेज. क्रूअल तरीके से जैसे मारना है, जैसे मान लीजिए निर्भया केस में हुआ, दैट वाज ए क्रूअल्टी. क्रूअली ऑफेंस को अंजाम देना, वो मर्डर केस नहीं है. मैं क्रूअल्टी फोकस कर रहा हूँ कि इट इज कॉल्ड क्रूअल्टी, है ना? इट इज कॉल्ड अनयूजुअल मैनर. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? जैसे उसको पीसेस में कट करना, क्रूअल मैनर, अनयूजुअल मैनर, इट कैन हैपन. ठीक है? लेकिन मान लीजिए रोड रेज हुआ, टकरा गई गाड़ी, लड़ाई झगड़ा हुआ, चल पड़े आगे को, फिर रेड लाइट पे, फिर एक दूसरे को देखा बैक मिरर में देकर के, फिर उधर आए. तो इट इज नॉट सडन फाइट नाउ. You have, there is a gap of the passion to cool down. अब तो लड़ने का मन ही कर रहा था, तो अलग बात हो गई, समझे? तो प्लीज you should not forget sudden as well. Fighting or quarrel should be sudden, means no time for passion to cool down. कर लेंगे आप लोग? है किसी के मन में कोई? एक क्वेरी इनकी ये है कि if someone kills someone after killing, यानी कि after causing death, he cut the dead body into pieces. So that is the disposal of evidence, disposal of body, not the killing. This is not a killing in unusual manner.
Suppose he gave poison, someone gave you poison and because of that death is caused. So now the causing of death is not in the cruel or unusual manner. Got it or not? Now you are cutting piece of what? Dead body. This will not be the case of this, like this. So that is the cutting. To whom you are cutting? Dead body. You just imagine you go and see the movie Murder 2. Usme the villain hits again and again. He enjoys that cries of the victim. That is a cruel manner. He is enjoying, he is assaulting and he is enjoying that उसको हर चीख पे उसको आनंद आता है कि चीख और चीख. That is cruel manner. So this is cruelty or unusual manner. This is at the time of causing death, not after the causing of death. When death हो गई, बाद में बात खत्म फिर तो. सही है? और बताइए. सो नाउ अब एंड करते हैं एक्सेप्शन नंबर 4 का. सो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, लेक्चर पसंद आया होगा. एंड आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दीजिए, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गो टू द गूगल रिव्यूज़ एज वेल. एंड अगेन आई विल एडवाइज यू, आई विल रिक्वेस्ट यू प्लीज़ एंड प्लीज़, आपका टाइम बहुत कीमती है, आपने वीडियो को देखने में बहुत टाइम लगाया है, इसको आपको भूलना नहीं है. और भूलने से बचने का एक ही तरीका है, आप इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते रहें, अपने माइंड में इसको दोहराते रहें. इतना काम ज़रूर कीजिएगा, इससे कि हमेशा के लिए आपके माइंड में ये फिक्स हो जाए. जैसे कि 2 का पहाड़ा, ये टेबल्स आपके माइंड में फिक्स हो चुके हैं मल्टीपल रिविजन्स की वजह से. उसी तरीके से सेक्शन 101 BNS और या फिर सेक्शन 300 IPC भी आपके माइंड में फिक्स हो सकता है. तो विद दिस एडवाइस नेक्स्ट वीडियो आप प्ले कीजिए. थैंक यू वेरी मच.